Hello, friends. This is Nilesh Patil, sir, from the English Academy, Nashik. And yes, today we are meeting for this session on MCQs from Political Science, Chapter 1. You know, power sharing is a very important chapter from political science. And many students I have been talking to have told me that they are quite confused in attempting MCQs. पहले तो लगा था सर MCQs पैटर्न है टर्म 1 में बहुत ही आसान होने वाला है, कोई टेंशन नहीं. बट अब जब हमने सैंपल पेपर देखा तो समझ में आया कि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है. ऐसे लगता है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. This is what students told me. And so I thought, why not discuss the questions? Why not explain these questions and answers to students? And that's why I'm here. I'm going to discuss 10 questions from Political Science Chapter 1, Power Sharing. These questions you might have come across in your sample paper from exercise based on political science lesson chapter number 1. So dear friends, without wasting time, let's begin. Let's discuss the questions. So here's the question number 1. Which one of the following countries adopted majoritarianism in their constitution? बहुत ही आसान सा सवाल. Definitely many of you know the answer already. But some students told me, sir, what is this majoritarianism? We don't know what it is. So बच्चे लोग, you might definitely have studied the example of Sri Lanka and Belgium in your textbook. And there you saw what happened in Sri Lanka. A majority community, the Sinhala speakers in Sri Lanka, tried to establish their domination, their supremacy over the Tamil minority. This is what is majoritarianism. Majoritarianism में majority community अपना dominance, अपनी supremacy establish करते हैं by disregarding the wishes and needs of minority. What happened in Sri Lanka? In 1956, they passed an act and established Sinhala supremacy. Sinhala was given the status of official language. Tamil was disregarded. Sinhala speakers were given preferential favor treatment in university positions, government jobs. और वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहा कि आपको बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करना है, बुद्धिज्म को फॉस्टर करना है, ग्रो करना है. सो डेफिनेटली मेजॉरिटेरियनिज्म हुआ. यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, आप में से कई लोगों ने बहुत आसानी से आंसर सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन सी श्रीलंका, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में मेजॉरिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल दिया है वो है श्रीलंका का. Having discussed majoritarianism, dear students, let's move ahead to the next question. Identify the significant reason of power sharing from the following options. कुछ options दिए गए हैं. Question का मतलब समझना बहुत जरूरी है. Why is power sharing necessary? Is it because option A, it reduces socio-economic conflict? Is it because option B provides ethnic cultural development? Is it option C, allows people to enjoy specific rights? Or option D, restricts supremacy of one party? और यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जो है वो कहते हैं कि सर ऑल ऑप्शन सीम करेक्ट. पता ही नहीं. जब आपको ऐसा लगे बच्चे लोग कि ऑप्शन सभी ऑप्शंस करेक्ट है, तो आई सजेस्ट यू रीड द क्वेश्चन अगेन. Because unless and until you understand the question properly, you will not be able to select the answer. Look at the question. They are asking significant reason behind power sharing. Why to share power? उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है? So there is only one option that is correct here, और वो option है power sharing reduces socio-economic conflict. क्या हुआ श्रीलंका में? Because they denied sharing power with the Tamils, there was conflict in Sri Lanka. There was social conflict, economic conflict.
In Belgium, on the other hand, because they shared power, वहां पे भी आपको याद होगा डच स्पीकर्स थे, फ्रेंच स्पीकर्स थे, उनमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, बट देन बिकॉज दे अग्रीड टू शेयर पावर, डियर फ्रेंड्स, they avoided the division of the country, right? On linguistic basis उनकी कंट्री डिवाइड हो जाती थी, पर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग किया. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आप कहोगे सर क्यों ऑप्शन बी क्यों नहीं करेक्ट? एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट, पावर शेयरिंग का ऑब्जेक्टिव, पावर शेयरिंग का जो पर्पस है, क्या वो एथनिक डेवलपमेंट है, किसी एक ग्रुप का, किसी एक लैंग्वेज बोलने वालों का, किसी एक कल्चर को फॉलो करने वालों का डेवलपमेंट है? तो डेफिनेटली ना, पावर शेयरिंग के पीछे ये रीजन नहीं. क्या लोगों को स्पेसिफिक राइट्स एंजॉय करने चाहिए इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं. रेस्ट्रिक्ट सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी, तो पावर शेयरिंग के ये रीजंस नहीं है. ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट एंड दैट इज ऑप्शन ए. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड इट. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 3. डियर फ्रेंड्स, look at the question, read the question properly. Apart from central and state government, Belgium has a third kind of government, a memory based question. आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है. यस, योर आंसर इज राइट. जो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है बेल्जियम में, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? आपने देखा है फेडरेशंस जो है एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एमर्ज हुए हैं. यस, सो बहुत जरूरी है ये देखना कि फेडरेशन कैसी एमर्ज हुई है. सो देयर आर टू टाइप्स, टू वेज इन विच फेडरेशंस कम इन एग्जिस्टेंस. एक तो होता है कमिंग टुगेदर, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स साथ में आते हैं, दे पूल देयर सॉवरेनिटी एंड इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. जैसे हुआ था यूएसए में. आपको पता है कि यूएसए won its independence from Britain, its parent country. There were 13 British colonies. पर क्या सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनीज थी? नहीं. There were French colonies, there were Spanish colonies. Different European nations had established, the people of European nations had established their colonies. पर जब इंडिपेंडेंस मिला अमेरिकन कॉलोनीज को, they all came together, they pooled their sovereignty and established यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल. ऑन द अदर हैंड, इंडिया में क्या हुआ? इंडिया वाज गिवन इंडिपेंडेंस बाय द ब्रिटिश, वी वन आवर इंडिपेंडेंस. और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, यहाँ पे प्रोविंसेस थे अलग अलग. सो these were all the government of India, union government, brought them all together. It is holding together federation. क्योंकि ये जो अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स है, इन सभी को यूनियन गवर्नमेंट ने बांध के रखा. उसके बाद आपको पता है फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया गया, स्टेट्स को पावर्स दिए गए. फिर भी मुझे एक डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं उनका स्टेटस एकदम इक्वल होता है. whereas होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जो है in they were, you may say, they enjoy the same powers, but still central government tends to be more powerful in holding together federations, जैसे इंडिया में है. तो आई होप ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपने सुना, आपको आंसर तो पता चल ही गया है. यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से. द प्रीवियस क्वेश्चन, यस इट वाज द फोर्थ क्वेश्चन. अभी द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. उन्होंने पूछा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहना है. ओके, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. आप इमेज देख सकते हो यहाँ पे, एंड इन दिस इमेज यूएस में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो दिखाया है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. इसमें क्या होता है, लॉ बनाने वाले, दैट इज लेजिस्लेचर, लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले एग्जीक्यूटिव, एंड जुडिशियरी जो लॉज का इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, जस्टिस भी देते हैं. तो देखो ये जो तीनों ऑर्गन्स है
दे आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल। क्या इनमें से कोई सुपीरियर है या कोई इंफीरियर है? तो बिल्कुल नहीं, तीनों की अपनी अपनी पावर्स है एंड दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इनमें से कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। दीज आर नॉट ऑर्गन्स एट डिफरेंट लेवल्स, दीज आर ऑर्गन्स एट द सेम लेवल, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इट गिव्स जुडिशियरी मोर पावर। द वेरी स्टेटमेंट that judiciary is more powerful is wrong. Option A is not the correct answer. It allows different organs of the government to be placed at the same level. यहाँ पे कुछ सेंस बनता है। Yes, they are different organs, but they are placed at the same level. Next is, हाँ आप कहोगे सर आपको तो आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्यों पढ़ रहे हो सी, क्यों पढ़ रहे हो डी? तो दिस इज माय सजेशन डियर फ्रेंड्स, read all options even when you are confident, even when you know the answer. मुझे आंसर पता है, ऑप्शन बी इज आंसर, क्योंकि मैंने पहले ऑप्शन सी और डी भी पढ़ा है। तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी गो थ्रू ऑप्शन सी एंड डी। देखो यहाँ पे इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज एट पॉलिटिकल लेवल। तो हाँ पावर शेयरिंग से ये होता है, पर क्या हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसे कहते हैं? तो नहीं। नेक्स्ट इट इन्फ्लुएंसेस कोऑर्डिनेट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या हॉरिजॉन्टल जो भी है पावर इज शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स, क्या इससे डिसीजन मेकिंग में कोई कोऑर्डिनेशन होता है? तो डेफिनेटली नॉट, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। पर जब आपको ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं एंड दे ऑल साउंड करेक्ट, ऐसे लगता है कि सभी स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, फिर आंसर क्या है? इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी टू रीड द क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि कितने ऑप्शन सही है और कितने ऑप्शन गलत है, राइट? आई होप डियर फ्रेंड्स यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। आंसर वाज ऑप्शन बी। आप देख सकते हो फिर से, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल। आगे बढ़ेंगे नाउ, अगला सवाल, एक्सट्रीमली सॉरी, आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन यू कैन सी, dear friends consider the following statements about power sharing arrangements in Belgium and Sri Lanka. तो अभी हमें ये स्टेटमेंट्स कंसिडर करने हैं। लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। इन बेल्जियम डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो क्या ऐसा हुआ था? हाँ जरूर सर, हमें याद है कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी मेजॉरिटी में थी, 59% ऑफ देम वर डच स्पीकर्स, और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे वो माइनॉरिटी में थी। बट ब्रसेल्स में इसके अपोजिट कंडीशन थी, 80% वर फ्रेंच स्पीकर्स, 20% वर डच सॉरी या डच स्पीकर्स। बट यस डेफिनेटली इट हैपेंड, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। डच स्पीकिंग लोग जो थे उन्हें लगता था कि जो बेनिफिट्स है एजुकेशन के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। सो देयर वाज दिस फीलिंग ऑफ एनिमिटी, इससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जरूर डच स्पीकिंग लोगों ने डोमिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए प्रयास किया था। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आगे देखते हैं। इन श्रीलंका पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट सॉट टू एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग मेजॉरिटी। क्या सिन्हाला स्पीकिंग मेजॉरिटी ने श्रीलंका में डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए एफर्ट्स लिए थे? हाँ जरूर, 1956 में जो एक्ट पास हुआ था आपको याद होगा, उस एक्ट के तहत उन्होंने सिन्हला लोगों की जो सुप्रीमेसी है वो इस्टेब्लिश करना चाहा था। तो डेफिनेटली दे पास्ड एन एक्ट और दे डिड इट। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। इन द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड फेडरल अरेंजमेंट of power sharing to protect their culture, language, equality of opportunity in education and jobs. So definitely you have come across this statement in your book. ये श्रीलंका में हुआ था कि तमिल बोलने वाले जो लोग हैं, they had this sense of alienation. They were feeling that the government is not trying to do justice. सिन्हला लोगों को यूनिवर्सिटी में जॉब्स मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटी पोजीशंस मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहे हैं, तमिल स्पीकर्स को नहीं मिल रहे हैं। उनकी लैंग्वेज को कोई ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं है, सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस है। तो इससे क्या हुआ, ये तमिल लोग जो थे उन्हें लगा कि उन पे अन्याय हो रहा है एंड दे डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट। उन्होंने एक सेपरेट तमिल एलम यानी कि तमिल स्टेट की डिमांड की। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन डी,
transformation of Belgium from unitary to federal one prevented possible division of the country on linguistic lines. तो डेफिनेटली हमने पढ़ा है, हाँ बेल्जियम में उन्होंने सक्सेसफुली जो डिवीजन होने वाला था उसे अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग किया, अकोमोडेशन का प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया। तो क्या बेल्जियम का डिवीजन हुआ था? बिल्कुल नहीं। चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में दिया है चारों स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इसके बाद ये सिक्स्थ एक्टिविटी, सिक्स्थ क्वेश्चन, वेट अ मोमेंट, ये तो सिक्स्थ क्वेश्चन था, थोड़ा सा नंबरिंग में गलती हुई है। सो सिक्स्थ, सॉरी, दिस इज द सेवेंथ क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिए हैं डिफरेंट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, लिस्ट 2 में उनके नाम दिए हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है और मैच करना है। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जब पावर शेयरिंग होती है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेसन पढ़ा है, वहां पे आपने देखा मॉन्टेस्क्यू एक थिंकर थे, फ्रेंच थिंकर, जिन्होंने एक थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स उन्होंने प्रपोज की थी, जिसके तहत ही सेड जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर शुड बी सेपरेटेड। बिकॉज फ्रांस में क्या था, मोनार्क जो था उसके हाथ में ये तीनों पावर्स थी। तो यस, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। दूसरा, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, जैसे हमारे भारत में है, देखो देयर इज अ गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, देयर इज अ गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, और उसके बाद और एक लेवल है जिसे कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट वी कॉल डिसेंट्रलाइजेशन, या दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। आपको फेडरलिज्म का डेफिनेशन अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। When power is distributed among different levels, it is called federal government. तो लिस्ट 1 में से जो सेकंड स्टेटमेंट है, फॉर्म है, दैट मैचेस विद ऑप्शन डी। उसके बाद थर्ड देखते हैं, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इसे क्या कहते हैं? डेफिनेटली सर हमने पढ़ा है बेल्जियम में क्या हुआ, फ्रेंच, डच और जर्मन, इनकी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। So when power is shared among different groups, we call it community government. Last one is power shared by 2 or more political parties. When no single party is able to win majority, 2 or more parties come together and establish government. जैसे महाराष्ट्र में हुआ है महाविकास आघाड़ी, that is a government coalition of शिवसेना, कांग्रेस and nationalist Congress party. This is called coalition. तो माय डियर फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू व्हाट द आंसर्स आर। आपको आंसर भी पता चल गया, ऑप्शन सी इज द आंसर। कुछ बच्चों को ऐसे पॉसिबिलिटी है कि इनमें से एक पता नहीं है सर, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस में जो करेक्टली मैच किए हैं 3 ऑप्शंस कोई भी, तो आपको फोर्थ वन तो अपने आप से पता चल जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बट देन व्हेन यू आर टेकिंग एमसीक्यूज यू नीड टू बी अ लिटिल स्मार्ट। और ये बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चंस और ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ो, नहीं तो आपकी अगर गलती हो गई वहां पे तो यू मे लूज योर मार्क। डियर फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द 8th क्वेश्चन। आई एम सॉरी, द नंबरिंग हैज गॉन रॉन्ग। 8th क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पे कोड्स दिए हैं नीचे, पर स्टेटमेंट्स पहले पढ़ लेते। इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। क्या पावर शेयरिंग के बारे में ये स्टेटमेंट करेक्ट है? डेफिनेटली यस सर, वी हैव रेड इट इन द टेक्स्ट बुक। इट क्रिएट्स हार्मनी इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इज इट द ट्रू स्टेटमेंट? डेफिनेटली यस डियर फ्रेंड्स। व्हाट हैपेंड इन बेल्जियम? अलग अलग सोशल ग्रुप से फ्रेंच स्पीकर्स, डच स्पीकर्स केम टुगेदर। जरूर देयर वाज हार्मनी इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब बहुत जरूरी है समझना। So you see, when there is transparency, people can get enough information. And transparency है तो इसका मतलब corruption नहीं है।
तो क्या पावर शेयरिंग से करप्शन हट जाता है, करप्शन कम हो जाता है? तो क्या पावर शेयरिंग का और करप्शन का कोई डायरेक्ट रिलेशन है? डेफिनेटली नॉट। पावर शेयरिंग तो हमारे देश में भी है, पर क्या हम कह सकते हैं कि करप्शन इज टोटली अपरूटेड? डेफिनेटली नॉट। फोर्थ ऑप्शन देखिए, इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज। अब सोशियो पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होता है? देखो, इन इंडिया देयर इज पावर शेयरिंग, वी हैव अ फेडरल अरेंजमेंट जहां पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इलेक्शन में compete करती है। और डेफिनेटली ये कंपटीशन अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि पीपल गेट द चांस टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर चॉइस, राइट? दे हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। तो क्या सोशियो पॉलिटिकल कंपटीशन होती है पावर शेयरिंग की वजह से? डेफिनेटली होती है, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि वो कंपटीशन होगा तभी तो जो बेस्ट कंटेंडर है वो आगे आएगा। सो यस, पावर शेयरिंग में कंपटीशन होता है, सोशियो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। तो आपको ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, यू माइट हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑप्शन 1, 2 and 4 आर करेक्ट। एंड विच ऑफ दिस ए बी सी डी लिस्ट ऑप्शन 1, 2 and 4? आप देख सकते हो ऑप्शन डी जो है तीनों को लिस्ट करता है। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, दिस इज द 9th क्वेश्चन, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। There has been a mistake in the numbering, but we will focus on the question. Consider the following two statements on power sharing and select the answer using the codes given below. दो स्टेटमेंट दिए हैं और नीचे दिया है इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है। लेट्स सिलेक्ट इट। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। Definitely power sharing is good for democracy. Option B, it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. अभी अभी हमने देखा ये स्टेटमेंट, मैंने एक्सप्लेन भी किया कि बेल्जियम में ये हुआ था कि डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डियर फ्रेंड्स, you have selected the correct answer option B. Both A and B are true. This is the 10th question. Prudential reasons of power sharing stress on the fact that, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया, the students told me, sir, this question is very confusing, and they told me an answer which was incorrect. This question is really confusing for many. आप लोग ट्राई करो इसका आंसर सिलेक्ट करने के लिए, डेफिनेटली यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। देखो, प्रूडेंशियल रीजंस जो है, they stress on the facts that there are two sets of reasons. आपने आपके टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक देखा है, why is power sharing desirable? वहां पे उन्होंने दो सेट दिए हैं कि पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए। एक को उन्होंने कहा है प्रूडेंशियल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड मॉरल रीजन। तो व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजंस? प्रूडेंशियल का मतलब होता है द वाइज थिंग टू डू। पावर शेयरिंग करने के फायदे क्या है, क्यों करना चाहिए? इट एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। डेफिनेटली श्रीलंका में क्या स्टेबिलिटी आई? नहीं, क्योंकि दे डिनाइड पावर शेयरिंग, देयर वाज सिविल वॉर, राइट? तो ये, हाँ, दिस इज अ वाइज थिंग टू डू। इफ यू आर वाइज इनफ, यू विल शेयर पावर विद डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स एंड आइडियोलॉजीज, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा। डेफिनेटली ऑप्शन ए इज द प्रूडेंशियल रीजन। देन it reduces possibility of conflict between social groups. This is why we share power. दो पहला ऑप्शन तो पॉलिटिकल ऑर्डर से रिलेटेड है, बट देन बोथ आर क्वाइट सिमिलर। दिस इज द आउटकम ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग helps us to avoid that conflict between different social groups. लिंग्विस्टिक लाइन पे हो सकता है, रिलीजियस लाइंस पे हो सकता है। अगर किसी एक ग्रुप को आप डिसएडवांटेज रखते हो, डेफिनेटली दे विल राइज एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। तो दिस इज अ वाइज थिंग टू डू। अगर आप प्रूडेंशियल मेजर्स लेते हो तो यू विल डेफिनेटली शेयर पावर। सी, ऑप्शन सी, इट गिव्स अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी। क्या पावर शेयरिंग की वजह से माइनॉरिटीज को शेयर मिलता है? डेफिनेटली हाँ, बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स में रिजर्वेशन भी होते हैं, आपको पता है। तो बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस इवन माइनॉरिटीज में गेट चांस टू contest elections and win elections. But my dear friends, make no mistake, option C though is factually correct,
ये सोचो क्या ये प्रूडेंशियल रीजंस के अंदर आता है या ये मॉरल रीजंस के अंदर आता है, क्योंकि दो सेट ऑफ रीजन मैंने कहा, एक है प्रूडेंशियल रीजंस, दूसरा है मॉरल रीजन। सोचो कि क्या ये प्रूडेंशियल रीजन है या मॉरल रीजन। ऑप्शन डी देखो, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्यों करे, क्यों करे? क्योंकि इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में because of the exercise of democracy, some are negatively affected, aren't they? Minority is negatively affected क्योंकि democracy follows the principle of majority wins. डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजॉरिटी तो जीतने ही वाली है, तो माइनॉरिटीज का क्या? So those who are affected by the exercise of democracy, डेमोक्रेसी के एक्सरसाइज से जिनको नुकसान पहुंचता है, तो दे शुड बी कंपेंसेटेड। ये तो मॉरल रीजन है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दैट इज वाई पावर शेयरिंग नेसेसरी। तो देखो यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन करते हुए भी आपको थोड़ा सा क्लू दिया कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, दो दे आर करेक्ट, बट दे आर नॉट प्रूडेंशियल रीजन, दे आर मॉरल रीजन बिहाइंड पावर शेयरिंग। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू हैव सिलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन. Correct option is option A and B. Let's move ahead. This is the next one is, dear friends, the 11th question it is. Which of the following country does not share its border with Belgium? This is a memory based question. आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक आंसर सिलेक्ट कर लिया है, आपका आंसर सही है। ऑप्शन सी, Sweden is the country that does not share its borders with Belgium. I hope dear friends, ये जो मैंने explanation दिया तो आपकी समझ में आया। I hope you enjoyed this video and definitely understood some concepts. I tried to explain the concepts with the help of questions. Dear friends, in the coming days, I am coming up with such videos. So if you want to stay in touch with me, you can just subscribe this channel. What they do, you have to press the bell icon, so you will get notifications for the coming videos. And if you like my video, you can just press the thumbs up. और आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिले, उन्हें भी अपने पढ़ाई में मदद मिले। So thank you for watching this video. Signing off, Nilesh Patil sir.